And okay, that's good. So yes, students, a very good morning. Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Very good morning. Yes, settle down fast. Six steps, settle down fast. बेटा जल्दी से बैठो, जल्दी जल्दी बैठो अब आप। सब जल्दी से अपने सीट पे बैठ जाओ। Sit down. और जो लिख रहे हो, जो कॉपीज ओपन है, क्लोज इट. I can see you are doing your pending work here in this class. Absent है बोल। Yes, बेटा अपनी कॉपीज बंद करो. Otherwise, I will zoom it and take a screenshot and share with your principal. जो इस क्लास में कोई और अपना पेंडिंग वर्क कर रहा है, कोई और सब्जेक्ट लेके बैठा है, मैं जूम कर रही हूँ उसी कॉपी को विद देयर फेस एंड देन टेक स्क्रीनशॉट एंड शेयर विद योर प्रिंसिपल. ओके, so you are not supposed to do any other work in this class. तो सबसे पहले अपनी जो दूसरी नोटबुक है बंद करो. 6F, I can see many of you are doing your pending work. Close your notebook. अब न्यू नोटबुक है। बेटा वो आपकी तो है, आपको नहीं मैं कह रही हूँ, वो जो मिडिल रो में है उनको कह रही हूँ. मैम दैट इज माय न्यू नोटबुक। आई वाज राइटिंग माय नेम। बेटा वो जो दूसरी वो कौन सी नोटबुक है? मैम यस। वो जो दूसरी थी वो कौन सी थी बेटा? वो मेरी फिल हो गई। ओके ओके, सिट डाउन बेटा. So everyone only take out your STEM notebook and pen pencil with you. सबके पास सिर्फ STEM की नोटबुक और पेन पेंसिल होना चाहिए. There's no nothing else I want to see. ठीक है? So now quickly start our session. Firstly, rub your hands. Everyone rub your hands fastly. So फटाफट hand rub करो. Everyone. Yes. Rub it fast. वैसे भी सर्दी है ना, हाथ थोड़े गर्म हो जाएंगे. So do it fast. Yes, with great energy. Yes, that's good. I can see. That's wonderful, everyone. That's really good. So now put your hands on your eyes. Yes. Now remove it. Okay? So now quickly take a deep breath. Oxygen देते हैं अपने brain को. ठीक है? So now on my call, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and last inhale, exhale. That's good. Wonderful students you are. That's really good. So now, student, I'm going to ask you one thing. Firstly, tell me, fun with magnet chapter has been done in your class. Who knows fun with magnet? Okay. So today we are going to revise it in question way. ठीक है? हम उसको अच्छी तरह revise कर लेंगे ताकि it will be easy for you. ठीक है? So now tell me, you can see in my hand, what is this? मैग्नेट। That's good. सबको पता है. It's a magnet. Again, I'm going to show you one more time. Here you can see. What is this? मैग्नेट। Okay, that's also good. Now what is this? मैग्नेट। सभी magnet है? Yes, all are magnet. मैम यस। Okay, that's good. तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी शेप देखी? So let's discuss about those shapes. पहले तो हम यहाँ देखते हैं. First one is this. ये क्या है? Let's zoom it. आर मैग्नेट। Yes, is it? है ना, ये बार मैग्नेट हो गया. मैम यस। So let's draw it. ठीक है? Please be quiet. Be quiet, everyone. Be quiet. First is bar magnet. जो आप लोगों ने बच्चों ने सबसे मुझे बताया. So it's a bar magnet. और उन्होंने bar magnet. ठीक है? Now I'm going to what is this? horseshoe मैग्नेट। What is the shape?
horseshoe magnet. सर्कल निकले हुए पापा Okay. Now last for you. Now last one. Circular magnet. Do we call it circular magnet? We called it annular. Yes, we called it annular disk magnet. इसके बीच में बेटा छेद होता है, that you can see here. It's a hole. अब एक और मैं आपको मैग्नेट दिखाती हूँ जिसमें होल नहीं है, ठीक है? So this is. It's also a magnet. What do we call it? It's a simple disk magnet. It is called disk magnet. इसको हम disk magnet कहते हैं. So we have seen, okay, हमने कौन कौन सी तरह की देखी? हमने 4 types की magnets देखी. We have seen 4 types of magnets here. ठीक है? So what was those? Bar magnet, Bar magnet, horseshoe horseshoe magnet, magnet, annual disk magnet, disk magnet. disk magnet. Yes. So did you notice some colors on that? कोई colors note किए आपने? कुछ colors? Red and blue. Okay, red and blue. That's fine. So let me draw it. बेटा आप सब भी साथ साथ करो. Oh yes. Yes, these are like this only. ऐसे थे ना ये जो भी आपको दिखाए थे बेटा? Yes. So these are the types of magnet. And the most common magnet, जो most commonly used होते हैं magnet, so these are these two. Most commonly used. Horseshoe and bar magnets are most commonly used magnets. Done, beta? Yes? Is it done? Yes. So yes. अब आपने इनमें देखा होगा एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर. What does it mean? क्यों है ये ब्लू और रेड? Yes? Yes, बेटा? अब आपके सबके पास पेन होगा ना? You all have pen with you? Yes. Yes. So एक साइड से आप लिख सकते हो. Yes. साइड जो टिक होते
एक साइड से आप लिख सकते हो, दूसरी साइड से क्या होता है, वो बंद होता है। यस और नो? Yes. तो वन साइड इज ओपनिंग साइड एंड सेकंड साइड इज क्लोजर। ठीक है, ये हो गया। मतलब इसके टू एंड्स हैं, इट हैज टू एंड्स, वन एंड टू। Similarly, magnet has two ends, and those two ends are called pole. क्या कहते हैं उसको? Poles. अब कौन कौन से पोल होते हैं मैग्नेट के? North Pole and अब मुझे बताओ, रेड कलर वाला नॉर्थ है या साउथ है? North Pole. मिक्स आ रहा है, नॉर्थ साउथ, ये क्या होता है? North. रेड इज नॉट श्योर, हैंड रेज करो, कौन कौन कह रहा है नॉर्थ जो होता है वो रेड होता है? रेज योर हैंड। अब दिख रहा है मुझे कितने बच्चे कंफ्यूज हैं। ओके, अच्छा चलो हैंड्स डाउन। अब कौन कौन कह रहा है रेड जो है वो साउथ है? रेड इज फॉर साउथ। ओके, मेनी हैंड्स आर स्टिल रेज्ड। ओके, चलो हैंड्स डाउन। चलो अब इसको समझते हैं, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो फर्स्टली यहाँ पर लिखो रेड, यहाँ पर लिखो ब्लू। स्पेलिंग लिखो दोनों, ठीक है? राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ बोथ। Write down. It's very easy to write the spelling of red or blue. You already know, है ना? अब मुझे ये बताओ, if I say यहाँ पर दोनों साइड में लिखी हुई साउथ एंड यहाँ पर नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ। अब बेटा टू रिमेम्बर इट, इसको रिमेम्बर करने का एक बहुत इजी वे बता रही हूँ। जो कॉमन है रेड में, और अगर हम बात करें कि नॉर्थ में, दैट इज आर। यस, आर इज कॉमन इन बोथ। Yes. ना ब्लू में आर आता है ना साउथ में आर आता है, ठीक है? तो रेड में आर आ रहा है यहाँ पर, और अगर हम नॉर्थ की बात करें उसमें भी एक आर आता है। तो आर आर साथ में जाएंगे, रेड नॉर्थ। तो रेड मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ पोल, ठीक है? बच गया क्या हमारे पास? साउथ है ब्लू के साथ। तो इसमें भी हम कह सकते हैं यू यू जिससे आ रहे हैं, ठीक है? तो आपने आर से याद करना है, रेड जिसमें, रेड किसमें शुरू होता है? आर से। अब आर किस में आ रहा है? नॉर्थ में आ रहा है या साउथ में आ रहा है? सो रिमेंबर इन दिस वे, सो यू विल नॉट फॉरगेट दिस। स्मॉल ट्रिक है बेटा, बट इट विल हेल्प यू। कितना भी रट्टा लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, लास्ट में भूल ही जाओगे, ठीक है? तो सिंपल याद करो, रेड कलर है, आर आ रहा है, आर किसमें आता है? नॉर्थ में आता है, साउथ में आता है। सो यू विल रिमेंबर इन दिस वे, ओके? Okay. Is it easy now? Ma'am, yes. Okay. So this is north pole, this is south pole. Similarly, every magnet has two poles. हर एक मैग्नेट के सिर्फ दो ही पोल्स होते हैं, दो से ज्यादा नहीं, दो से कम नहीं। Every magnet has only two poles. Write down. Every magnet has two poles, north and south. हर एक मैग्नेट के, चाहे वो आपके पास बार मैग्नेट है, हॉर्स शू है, रिंग शेप है, whatever you have, everyone is having only two poles, ठीक है? अब आ जाता है what do you mean by the pole? ये पोल क्या है? क्यों हम नॉर्थ साउथ हमने इसको ऐसे नाम दे दिया? और पहले तो मुझे बताओ what is magnet? If I ask you what is magnet, can you define magnet? Can you define magnet? Any of you? Yes, six say Khushdeep, Mehreen. Any of you can tell me? Six. Yes, say Khushdeep and Mehreen. Yes. Can you define me what is magnet? Ma'am, magnet is a device which attract things to magnet. Okay, let's sit down. Okay, sit down, sit down. Everyone write down the question, what is magnet? Everyone, let's note down the question, what is magnet? Magnet क्या होता है?
सबको पता है चुंबक होता है, लेकिन चुंबक क्या होता है? व्हाट इज चुंबक, व्हाट इज मैग्नेट? कैन यू डिफाइन इट? इट्स बिकम वेरी हार्ड, है ना। अब आप सबको दिखा के ये तो नहीं लेके जाओगे ना, मैग्नेट उठा के लेके चलोगे, ये देखो चिपक रहा है, नहीं ना। यू हैव टू टेल, यू हैव टू राइट डाउन, है ना। So what is magnet? Magnet is a type of material. Write down. Magnet is a type of material. Magnet is a type of material that has the property of attract, attracting attracting iron. Attracting iron. That has the property of attracting iron. So magnet is a type of a material. Magnet is a type of material that has the property of attracting iron. That has the property of attracting iron. Okay. तो पहले तो हमने कर लिया मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, टाइप्स हो गए, मैग्नेट क्या होता है। अब आ जाते हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक पोल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक पोल? ओके, अब हम मैग्नेटिक पोल कर दिया, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मगर ये क्या है? ये हमेशा एंड में ही क्यों प्रेजेंट होता है? यस बेटा, 6 से, यस बेटा। When the magnet attracts the iron is called magnetic substances or materials. Yes, that is fine. Now my question is, what is magnetic pole? पोल क्या होता है? अगर हम कहते हैं, जैसे अभी हमने बार मैग्नेट लिया, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बार मैग्नेट, so here we are saying this is our north pole, this is our south pole, ठीक है। But why do we call it pole? Why they are magnetic pole? Why we are not simply calling it simple magnet? क्यों हमने इसको जो ऐसे कहा ये पोल है, क्या है इसका मतलब? इसको सिंपल वे से समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन सिंपल वे, ठीक है। एंड फॉर दिस आई एम गोइंग टू डू perform an activity for you. So these are the iron fillings. छोटी छोटी आयरन है यहाँ पर बेटा मेरे पास। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, you can understand. यहाँ पर ये पेज दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस पेज? Yes. फाइन। तो इस पेज पे बेटा मैं कुछ आयरन फिलिंग्स डालूंगी। Here you can see मैंने इसमें कुछ आयरन फिलिंग्स डाली। कैन यू सी दिस आयरन फिलिंग? Yes. Yes. अब मैं इसको थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ, आई एम स्प्रेडिंग इट, ठीक है, मैंने इसको स्प्रेड कर लिया यहाँ पर। अब मेरे पास ये बार मैग्नेट है, अब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगी। अब अगर आपको मैं दिखाऊं, आपको कॉर्नर में दिख रहा है कहाँ पर चिपक रहा है मैं ये आयरन? कैन यू Yes. वेयर वेयर इट इज मोर अट्रैक्टिव? लेट मी जूम इट, जूम करके दिखाती हूँ। यस, नाउ इट इज आई थिंक प्रीटी मोर क्लियर। नाउ कैन यू सी Yes. वेयर इट इज मोर? On the poles. ये देखो, मैं तो बेटा पूरा मैग्नेट घुमा रही हूँ,
इसके ऊपर, लेकिन स्टिल यू कैन सी वेयर इट इज मोर। Ma'am, at the poles. अब यहाँ पर जहां पर ये सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है, मैग्नेट की पावर है, ठीक है, जहां पर अगर हम कहें मैग्नेट की सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है, वो बहुत पावरफुल है जहां पर, जिस एरिया में, तो दोज आर बेसिकली एंड्स एंड दोज एंड्स आर कॉल्ड पोल। ठीक है, तो हमें पता लग गया क्या होते हैं पोल, जहां पर सबसे ज्यादा इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस, राइट डाउन बेटा। पोल इज अ पॉइंट, पोल इज अ पॉइंट, is a point where strength of magnetic field, where strength of magnetic field is maximum, where strength of magnetic field, Ma'am, repeat again. yes, pole is a point, pole is a point where strength of magnetic field, strength of magnetic field is maximum। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर इसकी पावर होती है। वो जो दो एंड अभी हमने देखे कहाँ पर वो सबसे ज्यादा चिपका रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था आयरन फिलिंग को अपने एंड में, तो दोज आर पोल। ठीक है, उसको हम पोल्स कहते हैं। अब आ जाता है यहाँ पर, हमने एक वर्ड सुना मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? यस, कोई बता सकता है? लेट मी कॉल द नेम। 6B से गुरमीत या हरलीन, कैन यू टेल मी 6B से गुरलीन एंड हरलीन? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक फील्ड? ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एनी ऑफ यू, हरलीन एंड गुरलीन में से कोई भी आ जाओ, एनी ऑफ यू, पता है बेटा? Yes, ma'am. यस, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? Ma'am. चलो सिट डाउन, मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। 6C से जशनप्रीत या खुशदीप को पता है? 6C से जशनप्रीत या खुशदीप, डू यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? यस बेटा, डू यू नो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? Magnet force. मैग्नेट फोर्स, ओके, और कुछ? ओके, सिट डाउन बेटा, सो लेट मी टेल यू। अब ये देखो, एक मैग्नेट मेरे हाथ में, यू कैन सी द मैग्नेट, Ma'am, yes. और एक मैग्नेट मेरे इस हाथ में, ठीक है। नाउ अब ये देखो, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के सामने है, कैन यू सी दीज आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर। ये इसको नहीं खींच पा रहा, ना ये वाला खींच पा रहा है, ना ये ऊपर वाला। लेट्स ब्रिंग इट क्लोजर, थोड़ा सा पास लेके आते हैं। अभी भी नहीं हो पा रहा, अभी भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेट्स ब्रिंग इट मोर क्लोजर, नाउ यू कैन सी इट गेटिंग अप, नीचे वाला अपने आप ऊपर हो रहा है, कैन यू सी? ये देखो, Yes. कैन यू सी इट इज मूविंग अपवर्ड, अपने आप देखो बेटा ऊपर जा रहा है। जबकि ये मैग्नेट देखो बेटा, पहले भी ये देखो इसको खींच के ले गया, कैन यू सी? Yes. अब देखो फिर से हम नीचे को फिर से करते हैं, समझो इसको क्या हो रहा है यहाँ पर। अगेन बोथ मैग्नेट्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने है, बोथ आर, अभी भी सामने है, अभी भी सामने है, यू कैन सी दैट। अब देखोगे तो यहाँ पर अब हमें कुछ दिखने को मिलेगा, कैन यू सी? ये देखो फिर ऊपर चला गया, ये देखो फिर से चला गया। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा ये दोनों मैग्नेट, दोनों जब अब थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं तो उनमें इतनी ताकत नहीं है कि एक दूसरे को खींच सके, ये अट्रैक्ट कर सके। थोड़ा सा पास लेके आए तब भी नहीं है, लेकिन जब ज्यादा पास लेके आ रहे थे तो दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कहती है या क्या होती है? सपोज कर लो कि आपके जो है
स्कूल में असेंबली हो रही है, ठीक है, असेंबली चल रही है, प्रेयर चल रही है, स्पीकर पे चल रही है, ठीक है, उसमें जो प्रेयर गा रहे हैं, ठीक है, वो आपको अपनी क्लास में सुनाई देगी। अब अपने स्कूल से आप निकलो, प्रेयर चल रही है, थोड़ा सा दूर जाओ, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, और थोड़ा दूर जाओगे तो आपको वो सुनना बंद हो जाएगा, वो उसका जो एरिया है जहां तक सुनाई दे सकती है आप उससे बाहर निकल गए। यस, होता है सर। यस, इवन किसी शादी से जाओ या किसी बर्थडे पार्टी में गाने चल रहे हैं लेकिन आप थोड़ा दूर चले जाते हो सीरियस है, यू कांट हियर दैट। यस, होता है। यस, Yes. इसका मतलब उस चीज का असर सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, कुछ ही हद तक है, कुछ ही लिमिट तक है। सिमिलरली जो मैग्नेट है किसी को जब चिपकाता है या अट्रैक्ट करता है, उसका भी एक एरिया होता है, उसका असर यहां से शुरू हो रहा है, इतनी दूर से नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो जो उसका एरिया है जहां पर वो असर करता है, उसका असर हमें देखने को मिलता है, दैट इज देयर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी जहां पर हमें जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हैं वो देखने को मिलती है। हमें कहाँ मिल रही है? जब वो इतने पास आ रहे हैं, जब वो इतने पास है तब नहीं दिख रही। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो एरिया जहां पर हम मैग्नेटिक जो इफेक्ट है उसको फील कर रहे हैं। और कैसे फील होगा? जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिखो, रीजन अराउंड द मैग्नेट, रीजन अराउंड द मैग्नेट, region around the magnet where its magnetic force, where its magnetic force can be felt, can be felt. Again, region around the magnet, region around the magnet where its magnetic force, where its magnetic force can be felt. Full stop. This region is called, this region is called the magnetic field of the magnet. This region is called the magnetic field of the magnet. I am dictating it again. Region around the magnet, around the magnet where its magnetic force, where its magnetic force can be felt. Magnetic force can be felt. Full stop. This region is called, this region is called the magnetic field of the magnet. Is called the magnetic field of the magnet. ठीक है? So this is the definition of magnetic field. Now it is pretty clear to everyone. I hope so. Yes, it is clear. Yes. Okay. अगर अब मैं ये बात करूं कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है, क्या इनकी स्ट्रेंथ सेम होती है या डिफरेंट होती है? कोई वीक होता है, स्ट्रांग होता है, ऐसा कुछ होता है? यस, बोथ है सेम स्ट्रेंथ और डिफरेंट? Ma'am, same. अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया, दोनों ने सेम। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, आउट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, आउट ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल, आउट ऑफ नॉर्थ और साउथ पोल, which one is more stronger? Which one is more stronger? तो आंसर लिखो, both poles have same strength. Both poles have same strength. Both poles have same strength. अगर अब मैं ये जो मैग्नेट है इसको अगर मैं नाइफ से कट कर दूं तब क्या होगा? क्या ये नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा? Ma'am, no. क्या हो जाएगा बेटा फिर?
Ma'am, they react like an independent magnet and make their own north and south pole. Yes, if I cut these two from the middle, ठीक है, अगर कट कर दूं, Then it will change into independent magnet. तो ये अगेन यहाँ पर यस ऐसे बन जाएगा। अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं तो अगेन नॉर्थ साउथ बनेगा ही बनेगा। जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में लिखवाया था, मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इवन इनको भी अगर मैं और ब्रेक कर दूं, फर्दर ब्रेक कर दूं, हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। If I break them again these small pieces also have their north and south pole, ठीक है। Ma'am, yes. Yes. अब आ जाते हैं, you yes, have you noted down? Please wait. Okay. अब यहाँ पर हम करते हैं कि मेरे पास ये मैग्नेट है, आई हैव दिस मैग्नेट, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है क्या होगा, यू हैव टू टेल मी। When they will repel each other. पहले करने तो दो बेटा मुझे। अब हमारे पास तीन मैग्नेट्स हैं, 1 2 3। अब कौन सी वाली अट्रैक्ट करेगी, कौन सी वाली रिपेल करेगी? First, second repel each other. Second and third join each other. अच्छा बेटा एक मिनट, बी क्वाइट। 6 से हरताज आ जाओ, 6 से हरताज, 6 से हरताज और कमलप्रीत, हरताज एंड कमलप्रीत कम फॉरवर्ड, पास हो जाओ बेटा, कम फॉरवर्ड। यस हरताज, यू टेल मी विच मैग्नेट विल रिपेल, कौन सी मैग्नेट रिपेल करेगी, सिर्फ रिपेल का बताओ। यस हरताज, कौन सी दो मैग्नेट्स रिपेल करेंगी और सिर्फ इसका बताओ, रिपेल। सेकंड रिपेल करेगी, किसके साथ रिपेल करेगी, 1 के साथ या 3 के साथ? First. ओके, नाउ कमलप्रीत टेल मी विच मैग्नेट विल अट्रैक्ट, कौन सी दो मैग्नेट्स में अट्रैक्ट होंगी? Ma'am, second and third. यस दैट्स गुड। तो यहाँ पर अगर हम देखें सेम पोल फेसिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो क्या होता है, रिपेल होता है।
अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दो ऑपोजिट है, both are opposite, so they will attract each other. And ये सच्ची में होता है. I'll try to show you this. Okay. I'll try to show you this. In this paper, okay, I'm keeping this bar magnet here. ठीक है. तो ये जो बार मैग्नेट है इसका ये रहा साउथ और ये रहा नॉर्थ. अब मैं जो है नॉर्थ के पास नॉर्थ लेके आती हूँ. It's going away. It's going away. Let me show you it again. ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ. ये देखो अपने आप जा रहा है बेटा. ये देखो. Can you see? Have you seen this? इवन ये आप घर पे भी कर सकते हो. It's a fun only. क्योंकि सबको लगता है मैग्नेट एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, लेकिन आपको पता लग चुका है कि जो चिपकता कौन सा है, ऑपोजिट है. अब फिर से देखो, अब मैं जो है नॉर्थ के जो है दोनों एंड को पास लेके आती हूँ. देखो इट्स अगेन मूविंग अवे. ये देखो कैसे भाग रहा है. कैन यू सी? So it's a trick also. You can play this magic with your friends also. जो भी आपसे छोटे हैं ना, उनके साथ आप ट्रिक कर सकते हैं. देखो मैग्नेट तो भाग रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको ऑपोजिट करेंगे, अगर हम इसको ऑपोजिट कर देते हैं, जैसे अब ये जो है यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर ऑपोजिट करती हूँ, दे विल गेट अट्रैक्टेड. नाउ यू कैन सी दीज आर अट्रैक्टेड नाउ. तो वही चीज है, सेम मैग्नेट है, मगर हमने जब उनके पोल सेम सेम कर दिए, दे विल रन अवे. अगर उनके पोल डिफरेंट आ गए सामने, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सो इट्स अ फन, यू कैन प्ले. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर नेम इज फन विद मैग्नेट. ठीक है, सो दैट यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो. So now coming to next thing, अब आपने देखा होगा जो ये मैग्नेट है, इसको मैं कितनी बार हिलाऊं ऐसे. If I rotate it like this multiple times, it will come to a resting position. एक resting position पे आता है और ये फेस करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये देखो, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को हमेशा पॉइंट करता है. Why so? Why always position or point toward now north south direction? अब इसका रीजन सुनो बेटा. Because Earth is also like a magnet. Also use magnet behave like Yes, Earth is also a magnet. और उसके साथ एक चीज देखो क्या होता है. excuse me मैम. मैम आपने हमें बताया था कि रेड कलर का नॉर्थ होता है, पर इन आवर बुक इट इज मेंशन मैम कि रेड कलर साउथ है. कहाँ पर मेंशन है बेटा? मैम हमारी बुक में मेंशन है. हम पिक्चर उसमें लिखी बेटा नॉर्थ, रेड इज नॉर्थ. मैम बुक में हमारी रेड मैम साउथ को बताया है और ब्लू नॉर्थ बोला. नहीं बेटा, ये देखो, आई हैव अ मैग्नेट विद मी. If you can here, it's not. It is mentioned here also. Yes. ठीक है, it must be some typing error. हो सकता है ना? It can be. So now, अब आ जाते हैं. अच्छा, मैं आपको एक दिखा रही थी एक्सपेरिमेंट. ठीक है, for this now in middle of earth we can say here is a magnet. It's a big magnet. ठीक है, अब जो अर्थ है, अगर हम अर्थ की जमीन की बात करें, इट इज साउथ, इट इज नॉर्थ. जो मैग्नेट है, इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मैग्नेट का ये नॉर्थ है और मैग्नेट का ये साउथ होता है. ठीक है, अब अभी जो हमने एक मैग्नेट अभी हमने करके देखा था, थ्रेड से ऐसे टांग के बार मैग्नेट. तो व्हाट वी हैव सीन, जो नॉर्थ है ये रहा, साउथ इज हियर. तो नाउ ये क्यों नॉर्थ साउथ में जो है पोजीशन होता है, क्योंकि साउथ ऑफ आवर अर्थ मैग्नेट इज हियर. ठीक है, तो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो इट इज ऑलवेज अलाइन्ड इन दिस वे. लेकिन अगर आप अर्थ की बात करो, जमीन की ज्योग्राफी की बात करो, तो इसमें सेम पोजीशन अर्थ ज्योग्राफिकल पोजीशन के साथ होता है.
साउथ ऑफ मैग्नेट, साउथ ऑफ आर ज्योग्राफी, अर्थ के ज्योग्राफिकल एंड के साथ होता है, लेकिन अगर अर्थ के मैग्नेट की बात करें तो उसके ऑपोजिट अलाइन होता है, ठीक है। और ये फ्रीली अलाइन है, इसको हमने कोई फोर्सफुली नहीं किया है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, इट इज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होगा, तभी हम इसको कंपास के लिए यूज करते हैं। जो कंपास है मैग्नेटिक कंपास, उसमें वो हमेशा नॉर्थ साइड साउथ के डायरेक्शन को अलाइन करता है और उस वजह से हमें करेक्ट पोजीशन दिखाता है। तो राइट डाउन, freely suspended magnet, freely suspended magnet always, freely suspended magnet always point to a particular direction, point to a particular direction, और वो डायरेक्शन क्या है, ब्रैकेट में लिखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। freely suspended magnet always, freely suspended magnet always point to a particular direction, always point to a particular direction. This property of magnet is called directional property of a magnet. This property of a magnet is called directional property of a magnet. Ma'am, please repeat. Freely suspended magnet always point to a particular direction, always point to a particular direction. Bracket, in bracket write down north south direction, north south direction, bracket close. This property of magnet, this property of magnet is called, this property of magnet is called directional property of a magnet, directional property of a magnet. ओके, अब मैं आपको एक क्लास में इंटरेस्टिंग थिंग बताती हूँ। अब मेरे पास सपोज कर लो लोहा पड़ा है, ठीक है, एक आयरन पड़ा है, सपोज कर लो दिस इज आयरन एंड आई वांट टू मेक अ मैग्नेट। अब मैं इसको मैग्नेट बनाना चाहती हूँ, कैसे करूंगी, हाउ कैन आई डू दिस? फॉर दिस आई नीड अ मैग्नेट, मुझे एक मैग्नेट चाहिए, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेट आई हैव। इसको मैंने, अब ये देखो आपने एक चीज को ध्यान देनी है, आपने जो ये ले रखा है मैग्नेट, उसका जो पोल आपका एक साइड जो यहाँ पर है, नॉर्थ है या चाहे साउथ, कोई वट एवर यू कैन चूज, इट रिमेन लाइक दिस, इसको बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना, हमेशा एक ही डायरेक्शन में रखना है, अदरवाइज मैग्नेट नहीं बनेगा। तो दिस इज आयरन रॉड, सपोज नाउ आई विल मूव इट लाइक दिस, सीधा इसके पास ऐसे लेती जाऊंगी। अब देखो मैंने घूमना नहीं है, घुमाना नहीं, इसको ऐसे ही उठा के वापस लेके आना है, ऐसे एटलीस्ट 50 टाइम्स आई हैव टू डू इट, ऐसे सेम उसमें देखो बेटा, वापस मैं अपना हाथ घुमानी, अगर मैंने ऐसे कर दिया नहीं बनेगा, मैंने उसका जो है डायरेक्शन खराब कर दी, मुझे सीधा ही जाना है और मुझे ऐसे घुमा के नहीं लाना, ऐसे वापस ऐसे घुमा के नहीं ला रही मैं, इफ यू नोटिस मैं इसको सर्कुलर वे में ऐसे नहीं ला रही, ऐसे जा रही हूँ और ऐसे ही ऊपर से वापस सीधा आ रही हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट। तो आप घर पे मैग्नेट खुद भी बना सकते हो। ध्यान क्या देना है, ये सीधा ऐसे जाना चाहिए और ऐसे ही वापस आना चाहिए, ठीक है। यू डोंट हैव टू मूव इट लाइक दिस, ओके, और लाइक दिस, गॉट इट? तो यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। नाउ अब हमारे पास मैग्नेट है, अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, ये बेटा अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ भी सकता है। अगर इसे मैं जोर से फेंकूं जमीन पे, ठीक है, स्पेशली हाइट से फेंकूं, छत से फेंकूं, तो ये मैग्नेट जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको गर्म कर दूं, इसको मैं जो है सीधा आग में डाल दूं या वट एवर आई कैन डू, है ना, तो उससे भी ये मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, चुंबक जो है अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको जोर जोर से हैमर से पीटूं, देन ऑल्सो, so we have to take care of magnet also। हमें उसे डीमैग्नेटाइज नहीं करना, डीमैग्नेटाइज मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म नहीं करना, उसे वापस लोहा नहीं बनाना, ठीक है।
मैग्नेट को लोहा कैसे बनाएंगे? अगर हम उसे जोर से पीटेंगे, उसको जोर से फेंकेंगे और उसको गर्म कर देंगे, देन इट बिकम आयरन। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन। इज इट क्लियर बेटा? चैप्टर इज क्लियर? Yes. सबको क्लियर है? Ma'am, yes. ओके, फ्रॉम 6F, 6F मनसीरत और मानवी यादव, मनसीरत और मानवी। मनसीरत। बेटा टेल मी हाउ वी कैन डीमैग्नेटाइज मैग्नेट। मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं? By stored by keepers. हाउ हाउ वी डीमैग्नेटाइज मैग्नेट? By throwing the on a height. Going from a height, and also by heating it, or Or heating. yes, that's good. Sit down, sit down. So yes, this is how we can demagnetize iron. और आयरन किस किस से चिपक सकता है? आयरन सॉरी मैग्नेट किस किस से अट्रैक्ट हो सकता है? आयरन से, निकल से, और यस और किसी से होता है? कोबाल्ट। तो लिखो थ्री मटेरियल दैट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। थ्री मटेरियल दैट strongly attracted by magnet. Three materials that strongly attracted by magnet. Iron, nickel, and cobalt. So these are the three materials that easily attracted by, it's not cobalt, attracted by magnet. ठीक है? So this is all about your magnet. Any doubt you can ask me. Any doubt beta? Any of you, any doubt you can ask me. Raise your hand if you have any doubt. Yes beta, any of you? Okay. So that's all beta. We will meet in next class. Okay, bye. Take care. Bye, ma'am.